Joining us now to look at this, the Congress Party Supriya Shrinate and the BJP's Mahesh Verma. Thank you both very much for being with us. Supriya, it is, how accurate is this? While I'm sure these statistics are correct, the fact of the matter is our economy is in a far more robust condition. We've got decent foreign exchange reserves. It's law-based right now. We've got a Reserve Bank of India which seems to be doing its job most of the time. And of course, we've got economic problems, but is this comparison fair? So just to set the record straight, our factory output is below 2%. Our WPI, which is the wholesale price, it's at record levels. Inflation is at a 30-year high of 15.1%. Our retail inflation is at an 8-year high. Prices of petrol have crossed 100. That of atta and other manufactured goods are even higher. Trade deficit is at an all-time high, and the rupee, there seems to be nothing to stem that slide. It's just continuously falling, and I think with that, the credibility of the government. You said something about a robust economy. These understand our macros being extremely weak. Having said that, I do want to point out two things here. Why does this inflation differ from anything that we've had in the past? These high prices, these steep high prices are different because 83% of this country has reported an erosion in their wages and unemployment levels are very, very high. And so the best weapons of mass distraction are being used to keep the focus away from price rise. So Gyan is a weapon of mass distraction. Do you think it is not? I'm asking you. Do you think something found in the Qutub Minar is not a weapon of mass distraction? Okay, so let me take that to Mahesh Verma. Mahesh ji, and one second, Vishnu, the last point that I would want to make is, you spoke about forex reserves. Yeah. Just for the benefit of your viewers, $50 billion of forex reserves have been depleted to arrest the fall in the rupee. Right. We haven't succeeded. Yeah. Just to put it on record. So Mahesh ji, Supriya is an economist, so I'm hard pressed to question her beyond a point on this. But I think what I will ask you is the following. She says that Gyanvapi is a tool of mass distraction from these key issues that she's pointed out. I'm sure her numbers are correct. How would you respond to that? इसमें जी एक बार फिर साबित हो गया कि राहुल गांधी की जो एक राजनीति है या उनका जो एक विजन है देश को लेकर या जो उनकी समझ है या जो सूझबूझ है, एक बार फिर साबित कर दिया उन्होंने कि वो किस सूझबूझ के व्यक्तित्व है और किस तरह के वो देश के प्रति उनकी सोच क्या है, समझ क्या है और वो बोलते क्या है उनको खुद मालूम नहीं है। ऐसी परिस्थिति का कोई भी देशवासी आज जिस तरह से हम जो आज माहौल है, जो वातावरण है, उसमें जो है 82 करोड़ फैमिली को खाना मिल रहा है। आज जो हमारी जीडीपी जो थी, इस तरह की जीडीपी तो मनमोहन सिंह सरकार में भी नहीं थी, जिसकी ये क्लेम कर रहे हैं। अगर उससे कहीं तुलना की जाए, ये शायद आप गलत कह रहे हैं। महंगाई दर था मनमोहन सिंह के टाइम में। नहीं, पर महेश जी, सुप्रिया जीडीपी के अलावा सुप्रिया ने जो अभी कहा है, जो स्टैटिस्टिक्स उन्होंने कहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स किस कारण, आज इंडिया कोई बैंक पेट्रोल का प्राइसेस जो है, व्हीट रिजर्व्स का जो कंट्रोवर्सी रहा है, इन्फ्लेशन मोर देन एनीथिंग एल्स, क्या मतलब आप जवाब विष्णु जी? इस तरह से राहुल गांधी का ये चीख पुकार करने का ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा देशवासी ऐसा होगा तो आप तरीका के बारे में आप कंसर्न है या जो जिसका कोई आधार नहीं है? राइट, तो आप तरीका के बारे में आप मतलब आप कह रहे हैं कि रेल इश्यूज जो है इसके बारे में आप क्या जवाब देंगे? भारत दिवालिया हो गया, बताए राहुल गांधी कि किस तरह से दिवालिया हुआ है? कौन सा तरीका है जिसके वजह से ये कहा जाए कि भाई भारत जो है श्रीलंका की तरह दिवालिया हो गया, भारत जो है श्रीलंका की तरह कोहराम मचा हुआ है, इमरजेंसी लागू हो गई, सारी चीजें उसी तरह से हो रही है जैसे श्रीलंका में हो रही है। अरे भाई, अपने पीछे चले जाओ और तब के उठा के देख लो कि आर्थिक स्थिति क्या थी। और एक बात और आपको जरूरी बात बताऊं, देश हित में कभी भी कोई भी इस तरह का पॉलिटिशियन इस तरह के भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। ऑलराइट महेश जी, हाफ अ सेकंड, लेट सुप्रिया रिप्लाई।
तब भी I think what Mahesh ji is saying कोई बोल नहीं बोलता था, is that he is insulting the country with the tone that he uses, besides all of the other arguments. Mahesh ji, एक सेकंड, सुप्रिया को जवाब देने दीजिए प्लीज. मोदी सरकार में है, उसके बाद जी महेश जी एक सेकंड. महेश जी आपने बताया, आपने जवाब दिया, सुप्रिया को भी जवाब देने दीजिए प्लीज. जो मोदिया बिल से ग्रसित है उनको स्थिति जरूर अच्छी लगेगी, लेकिन जो मोदिया बिल से ग्रसित नहीं है और देश को प्यार करते हैं वो जानते हैं कि महंगाई और बेरोजगारी दोनों बेलगाम है. सब्जियों के दाम 23% बढ़ गए हैं और उनकी खपत आधी हो गई है क्योंकि लोग खरीद नहीं पा रहे हैं. ना प्राइस राइज पर बात करेंगे, ना महंगाई पर, ना बेरोजगारी पर, ना बढ़ती गरीबी पर, ना कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ पर. 42 लोगों की 52 लाख करोड़ हो गई आय और 84% देश की आय घट गई, उस पर बात नहीं करेंगे. दिवालियापन है हिंदुस्तान में, दिमागी दिवालियापन है, नैतिक दिवालियापन है भारतीय जनता पार्टी का, और इसलिए हम वहां हैं जहां हैं. आप बार बार मनमोहन सिंह जी का नाम ले रहे थे. आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कोविड के पहले आपने जीडीपी की ग्रोथ को आधा कर दिया था, महंगाई ऊपर कर दी थी और बेरोजगारी को 45 साल की चरम सीमा पर पहुंचा दिया था. नंबर से मुझसे खिलवाड़ मत करिएगा, नंबर से खिलवाड़ मत करिए, देश की चिंता करिए. बजाय चिंता करने के कहीं पर बुलडोजर खिलवाएंगे, किसी का घर तोड़वाएंगे, कहीं पर कोई खुदाई करवाएंगे. अरे भाई, ये देश में अगर नियम और कानून है तो एक प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991 Okay, one second, Supriya. Mahesh ji, the point being made is please reply to the real issues. Reply to the points that she has made. जी. ये तो इसी तरह से ये लोग मजाक बनाते हैं हर एक इश्यूज को. जब आपने इस देश का मजाक बना दिया. सुप्रिया, 1 सेकंड, 1 मिनट. आपसे लीची की बात करेंगे, बीच बीच में बोलते रहेंगे, रनिंग कमेंट्री इनकी चलती रहेगी. अब उसके लिए जो है हम और आप कुछ नहीं कर सकते. एक बात. दूसरी बात कि आप ये कह रहे हैं कि देश जो है ये दिवालिया हो गया. आप जो है ये कह रहे हैं कि इस देश में जो है ना लोगों को खाना मिल रहा है, ना लोगों को आर्थिक पैकेज मिल रहा है, ना बैंक किसी तरह से 20 लाख करोड़ का जो है वो देश, यही वो देश है जब प्लेग होता है तो 20 करोड़ का वैक्सीन नहीं होता है. इस देश में 200 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है. लोगों, किसानों को सम्मान निधि मिल रही है. तमाम कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, सुप्रिया श्रीनेत को मैं चुनौती देता हूं कि एक भी प्रोजेक्ट ऐसा बता दे जो रुका हुआ हो पैसे की वजह से, किसी आर्थिक मंदी की वजह से. ये WPI की नाम ले रही हैं, या ये जो चीजें ये हर महीने विष्णु जी फ्लक्चुएट करता है, ये इनके टाइम भी फ्लक्चुएट करता था. ये आज उसके ढोल पीट के देश को बदनाम करने का जो ये काम कर रहे हैं, क्या इस देश में सेंसेक्स इनको दिखाई नहीं दे रहा? क्या इस देश में इनको जो आर्थिक प्रगति है आज के डेट में, ये लोग चीजों को जो ये कह रही है कि महंगाई चरम सीमा पे, महंगाई के लिए क्या स्टेट गवर्नमेंट जिम्मेवार नहीं है? स्टेट का मैनेजमेंट नहीं आता है? केंद्र सरकार महंगाई के लिए जिम्मेवार है? कैसी बातें आप कर रही हैं? आप लोग किस तरह की बातों को लेकर, किस तरह के दुष्प्रचार को लेकर इस देश में राजनीति करने निकले हो? अरे भाई, कुछ तो शर्म करो. अब जनता इतना धूल चटा चुकी है, उसके बावजूद भी आप कितना बदनाम करोगे इस देश को और भारतीय जनता पार्टी. ओके महेश जी, लास्ट बदनामी और दुष्प्रचार और प्रोपेगेंडा से ये राजनीति आपकी फैलेगी फूलेगी. सुप्रिया, लास्ट कमेंट, 15 सेकंड्स, प्लीज गो अहेड. कि आप कौन लोग हैं? जी महेश जी, एक सेकंड. हाँ सुप्रिया, गो अहेड. लेकिन इसका समाधान नहीं दे सकते. आप दे दीजिए ना अपने. अरे चुप रहो भाई, चुप रहिए. वर्बल डायरिया हो गया क्या? आप जीत के आई है राज्यों में, चुप कराइए ना. मैनेजमेंट कर रही है. महेश जी एक सेकंड. महेश जी, लेट्स कीप दिस सिविल प्लीज. 1 सेकंड. महेश जी 1 सेकंड, 15 सेकंड बचा है. सुप्रिया रिस्पॉन्ड, वील टेक अ ब्रेक आफ्टर दैट. अगर आपकी बदतमीजी करने से देश की हालत सुधर जाती तो और आप बेहयाई और बदतमीजी करिए, लेकिन उससे देश की हालत नहीं सुधरेगी. 3 करोड़ लोग जो सेंसेक्स में उसकी चिंता कर रहे हैं, 15 करोड़ परिवार जिनकी आय आधी हो गई उसकी चिंता नहीं करेंगे. क्या कह रहे हैं? मैं WPI का फ्लक्चुएटिंग फिगर लेके आ रही हूं. 13 महीने से डबल डिजिट में है. कभी कोविड के पीछे छिपते, कभी रूस और यूक्रेन के पीछे छिपते. स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी. अरे प्रभु, 17 जगहों पर आपकी सरकार है, वहीं पर महंगाई को कम कर दीजिए. मुंह पर कालिक ऐसी पुत रही है, देश का नाम नीचा कर रहे हैं, गरीबों को मरने के लिए छोड़ दिया है. किसान सम्मान निधि की बात करिएगा. जिस महंगाई को आप लोगों की कमर तोड़ रहे हैं, एक झुंझुना दे दिया किसान सम्मान निधि. एक हाथ से देते हैं, दूसरे हाथ से लूट रहे हैं. ये आप कर रहे हैं इस देश के साथ, और यहां पर आकर इधर उधर की बात करिएगा. सच तो यह है कि सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा है अनर्गल, अनर्थक, बेकार के इश्यूज से. अगर हिम्मत है तो असली इश्यूज की बात करिए. असली इश्यूज की बात करो. Okay, all right. Talk about the real issues over there. Lots of criticism on what Rahul Gandhi, however, has said.
but I think the economic facts bear themselves out quite clearly. I'd like to thank you both very much for joining us with those details.